Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is our 16th lecture of our online classes. I am Mat Salman, and today we are going to study more about multiplication of polynomials. As we are taking one step higher, I am going to tell you that first of all, this question which we are going to deal today is quite different from the last 3 or 4 questions that we have done for multiplication of polynomials, where I'm going step by step, and we are only going to solve 2 questions in this class. So therefore you are requested to have your notebooks with you, because now this is going to be stricter. You have to have your notebooks, you have to be prepared in the lectures, you have to watch the video full, otherwise may be possible you are not allowed in the online class, because I'm not going to waste my time in repeating the lecture again, and just I'm going to deal with the questions which I am going to do in the class. So make sure you have prepared well before you enter your class, and you have watched the video full. If you are unclear at any point, ask me in the comment section so that I can repeat it in the class, and therefore we can have an effective communication in the lecture. These 2 minutes were very important for the class. It is lecture number 16, and we are going to proceed now towards the learning outcome. Before that, I'm going to have an Islamic motivation today, which we were missing from the last 3 or 4 classes. Thought this is an important step from moving towards something educated and something well performed, and therefore I'm going to have today's Islamic motivation, which is based on Zikr Ilahi. So the hadith says, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत में जाने के बाद अहले जन्नत को दुनिया की किसी चीज़ का भी कलक अफसोस नहीं होगा, बजाय इसके उस घड़ी के जो दुनिया में अल्लाह के ज़िक्र के बगैर गुजर गई हो. So that's the importance of Zikr Ilahi in our lives. We are going to regret every single second we have wasted in the works, in the raqabat of dunya, and therefore we should consume our time towards this main aspect of our lives. So yeah, let's move toward the learning outcomes. In this lecture we are going to learn how to multiply and divide algebraic expressions. You all know that. What are power addition rules? You know that when two variables which have different powers are having the same variable, when they are going to be multiplied, जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर हो जाती है ऐड. सिमिलरली एग्जाम्पल आपके सामने है, 2 नंबर्स हैं 8 पावर 3 और 8 पावर 5. जब मल्टीप्लाई किए गए तो पावर ऐड हो गई 3 + 5, यानी इसका आंसर आ जाएगा 8 पावर 8. नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पर आज के सवाल को रखा है. आज के सवाल के अंदर पहला पार्ट जो है 2p². अब करना क्या है, देखिए, मल्टीप्लाई a number or term with algebraic expression. ये algebraic expression को इस term से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. अब देखें, लास्ट सवाल में कुछ इस तरह था कि सवाल लिखा हुआ था. यहाँ सवाल लिखा हुआ तो है, आपने बनाना है पहले उसको, फिर इसके बाद उसको क्या करना है, सॉल्व करना है. तो सवाल बनता कैसे है वो भी देख लें. यानी यहाँ जो टर्म एक दी हुई है, जो टर्म लेस अमाउंट में मौजूद है उसको पहले लिखेंगे, और जो बाकी टर्म्स हैं उनको ब्रैकेट में बाद में लिखेंगे, जो एक एक्सप्रेशन है. यहाँ जो चीज़ सेपरेशन के लिए यूज़ हुई है वो ये है कॉमा. ये कॉमा हमें यहाँ ये बताएगा
यहाँ कॉमा हमें ये बताएगा कि हमने कहाँ एक्सप्रेशन बनानी है और कहाँ हमने सिर्फ टर्म को लिखना है। तो याद रखिए, पहले टर्म लिखी जाएगी, फिर ब्रैकेट में एक्सप्रेशन आएगी, बिल्कुल इसी तरह जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इसमें। अब देखें, सवाल के अंदर मैंने कोई इफ़ेक्ट यूज़ नहीं किया है, पूरा सवाल आपके सामने है। चाहे तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को पूरा आंसर आपके सामने आ जाए। लास्ट क्लास से इस क्लास में फ़र्क ये है कि मैंने उस क्लास के अंदर बहुत सारे विजुअल इफ़ेक्ट्स यूज़ किए थे। अब आप लोग उन इफ़ेक्ट्स को से आगे बढ़ गए हैं। अब आप लोगों को डायरेक्ट सवाल सॉल्व करना आना चाहिए, जिस तरह हम कॉपीज़ में करते हैं। तो पेपर के वक्त आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपके सामने एक सवाल होगा जिसको आपने हल किया हुआ होगा, और सवाल को हल करते हुए आपने सीखना होगा कि आपने किस तरह से इसको हल किया है। पहले जिस तरह किया था उसी को उसी तरह रिपीट करना है। तो अब देख लें, मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अपने कानों को बहुत अच्छी तरह से खोलकर इस वक्त सुन लीजिएगा, ताकि आप लोगों को अगर कोई इशू आए तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दें, या फिर मुझे ऑनलाइन क्लासेस में पूछ लें। कमेंट में बताएंगे तो फ़ायदा ये होगा कि मुझे याद रहेगा कि हाँ, ये एक सवाल मुझे डील करना है। मैं उस हिसाब से अपनी ऑनलाइन क्लास प्लान करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास हाफ़ एन आवर होगा, आधा घंटा होगा। उस आधे घंटे के अंदर जो मैक्सिमम सवालात हैं उनको डील कर सकेंगे। ये इफ़ेक्टिव वे तरीका अच्छा है अगर आप लोग इसके अंदर सही तरह अपने आप को मोल्ड कर लें। देखिए, लास्ट सवाल से मिलता जुलता सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। हमने इस ब्रैकेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स को, तमाम नंबर्स को, तमाम एक्सप्रेशंस, तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाना है इस बाहर वाली टर्म से। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अंदर यहाँ बेशतर चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पूरी टर्म इस एक टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और उस टर्म के अंदर मुख्तलिफ नंबर्स हैं और मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब पहले मैंने एरो बना के बता दिया कि ये मल्टीप्लाई इससे होगा पहली दफ़ा में, फिर सेकंड टाइम 3p क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, 3p क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, और लास्टली हमारा 4q पावर 4। अब देखना आपने ये है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर किस तरह आता है। तो पहले तो हमने लिख देना है मल्टीप्लाई का साइन बनाकर दूसरी टर्म को, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। फिर मैंने इस साइन को यूज़ किया है, ये माइनस का साइन अपनी जगह पे वैसे ही आया है। फिर मैंने ये टर्म लिखी है, देन मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ये टर्म लिखी है। इसके अंदर अगर आप लोगों को कोई इशू आया इस स्टेप के अंदर तो बताइएगा। फिर इसके बाद हमने प्लस का साइन डाला है जो बीच में आ रहा है, और फिर हमने लिख दिया है इस टर्म को और मल्टीप्लाई बाय 4q4, ठीक है। यानी हमने कुछ और नहीं किया, जिस तरह हम क्वेश्चन 4 डील कर रहे थे उसी तरह हमने ये किया है। बस फ़र्क क्या था, उसमें कम वेरिएबल, कम नंबर, या सिर्फ एक नंबर या सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ होता था। यहाँ पर एक मिक्सचर बन गया, यानी एक टर्म बन गई है। तो दो टर्म्स को एक वक्त पे मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, मैंने आपको समझाया कि 2 और 2 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ये नंबर्स हैं, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो आपको भी पता है कि 2 2 ज़ार 4 होता है, तो हमने आंसर में लिख देना है 4। नाउ देन p और p स्क्वायर, एक की पावर 1 है, एक की पावर 2 है। 2 1 ज़ा 2 नहीं होगा, यहाँ पर 2 + 1 होगा, क्योंकि जब भी दो वेरिएबल सेम होते हैं, बेसिस सेम होती है, तो पावर हो जाती है बेटा ऐड। यानी यह 1 + 2 हो गया 3, q आ गया यहाँ पर 1 टाइम, ठीक है। ये q यहाँ पर पावर 1 है, 1 + 2 हुआ, यहाँ पर भी q 3 आ गया। अब ये r कहाँ है, r मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है, गलती है, इसके r इंक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है। और इस आंसर में क्या इंक्लूड हो जाएगा, r इंक्लूड हो जाएगा जो इसके अंदर मिसिंग है, ठीक है। चलें, r वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पर कोई r की टर्म है नहीं तो वो वैसे ही उतर जाएगा। अब देन यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस किस में बदल गया, प्लस में बदल गया। 2 3 ज़ार 6, p और p मल्टीप्लाई करके बच जाएंगे p स्क्वायर, q और q क्यूब मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे q पावर 4, क्योंकि q यहाँ पर 1 है, 1 + 3 हो जाएगा 4। मुझे रिपीट नहीं करना पड़े, मैं कह रहा हूँ, अभी मैंने स्लाइड वापस रिपीट की हैं। मैंने ये कहा था कि जब दो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बेसिस सेम होती है तो पावर हो जाती है ऐड।
अब वहीं ले चलूँगा, वहाँ पर यही सेम मिसाल रिपीट करूँगा। क्यूब पावर 4 ऐसे आया कि क्यू और क्यू क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों क्यू हैं, बेसिस सेम हो गई, पावर हो गई ऐड, यानी 3 को मैंने किस में प्लस कर दिया, 1 में प्लस कर दिया। 1 कहाँ था, 1 यहाँ क्यूब के ऊपर था, तो आंसर आ गया आपका क्यूब पावर 4। चले, तो ये हमारा इसको सॉल्व करने का तरीका समझ आ गया आपको। देन आर वैसे ही उतर गया। अब देन प्लस माइनस, माइनस जो ये प्लस था वो बन गया माइनस। 2 4 जार 8, पी यहाँ मौजूद नहीं तो पी वैसे के वैसे नीचे उतर जाएगा। क्यू मौजूद है दोनों जगह, तो क्यू पावर 1 है यहाँ पावर 4 है, 1 + 4 = 5, तो क्यू पावर 5 बन। आर अपनी जगह वैसे ही आ जाएगा क्योंकि आर वहाँ मौजूद नहीं है, तो वो आंसर में ऐसे ही उतर जाएगा। अब देखें सारे वेरिएबल्स, देखें गौर से, इन सब वेरिएबल्स में हर चीज़ डिफरेंट है। जहाँ यहाँ 3 पी है, यहाँ 2 पी है, यहाँ 1 पी है, यहाँ 3 क्यू है, यहाँ 4 क्यू है, यहाँ 5 क्यू है, आर तीनों में सेम है। मैं ये कहूँगा कि यहाँ वेरिएबल्स आपस में डिफरेंट है, तो हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, यानी ये हमारा बन गया आंसर। जब भी आप ऐसे पॉइंट पे अलजबरा में पहुँच जाएं जहाँ आप मज़ीद सॉल्व ना कर सकते हो, उसको बना दें आप अपना आंसर, क्योंकि अलजबरा इज़ लिमिटेड टूवर्ड्स द अनलाइकली टर्म्स। यहाँ पर टर्म्स क्या है, आपस में अनलाइक हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स क्या हैं, आपस में अनलाइक हैं, इस वजह से हम लोग आपस में ऐड नहीं कर सकते। और आपको बखूबी पता है कि लाइक वेरिएबल्स ऐड होते हैं और अनलाइक वेरिएबल्स ऐड नहीं होते। हाँ, अनलाइक वेरिएबल्स मल्टीप्लाई ज़रूर होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया। ये p² और q4 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको 7 लिख देते हैं। q4 और r क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 7 लिख देते हैं। तो ये फिनोमेना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनलाइक वेरिएबल्स। हाँ, एडिशन ऑफ अनलाइक वेरिएबल्स के हवाले से फ़िलहाल कोई रूल नहीं है, आप में से अगर कोई साइंटिस्ट बने तो रूल बना दीजिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हमने इन दो टर्म्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देख लें मैंने दोनों टर्म्स को, अच्छा अब यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि दो ही टर्म्स हैं। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसके साथ कोई और दूसरी टर्म भी इंक्लूडेड होती, और वो कैसे पता चलता, बीच में प्लस का साइन होता और कोई और, फॉर एग्जांपल x² y मैंने इसमें ऐड करवा दी, ठीक है। ये छोड़, यहाँ पर अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो मैं इधर बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक टर्म क्या करवा ली, ऐड करवा दी। अब मैं ब्रैकेट किसका बनाता, ब्रैकेट अब मैं इसका बनाता, क्योंकि जिसका ज़्यादा टर्म्स होंगी उसका ज़्यादा बड़ा ब्रैकेट बनेगा। और मल्टीप्लाई में पहले कौन लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ अभी कुछ भी नहीं है, इस वजह से ऑप्शन आपके ऊपर है, पहले चाहे इसको लिख दें या पहले चाहे इसको लिख दें। अब देखें इसके अंदर एक स्टेप मैंने ज़्यादा किया है जो लास्ट उसमें नहीं किया था। देखिए पहले तो सबको मल्टीप्लाई करवा दिया, और इस यहाँ पर कलरिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट ऐसे की है कि जो नंबर्स हैं उनको सेम कलर कर दिया, जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको सेम कलर कर दिया। अब इसी तरह यानी -3/8 किससे प्लस मल्टीप्लाई होगा, 16 से होगा, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस का साइन नहीं है, माइनस इसका साइन है 3/8 का, ठीक है। चले अब 3/8 जब मल्टीप्लाई हुआ 16 से, तो अपॉन में 8 है, और आपको पता है 8 1 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16, यानी यहाँ पर बच जाएगा 2, 8 पूरा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 2 3 से क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, तो आंसर में 6 आ गया। x पावर 5 आ गया और x आ गया, ठीक है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 पावर है, यहाँ पावर क्या है, 1 है, दोनों पावर्स को ऐड किया तो आ गया 6। सिमिलरली y 3 है, y 1 पावर है, ठीक है। इसको मैं सही कर देता हूँ, यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, 1 + 3 4 हो जाएगी, या फिर इसको अच्छी तरह लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया y पावर 4, क्यों 4 आया, क्योंकि 3 + 1 क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। सिमिलरली z पावर 2 कैसे आया, z 1 पावर, यहाँ भी 1 पावर, 1 + 1 क्या 2 आ गया। एक चीज़ इसके अंदर मैंने छोड़ दी है आपके लिए, आप लोगों ने इसमें आइडेंटिफाई करनी है कि एक चीज़ मैंने मिस कर दी है जो सेकंड स्टेप में है और थर्ड स्टेप में नहीं है, तो वही बता सकेगा जिसने पूरी वीडियो देखी। अभी तक 15 मिनट्स की वीडियो, 14 मिनट्स 40 सेकंड्स की वीडियो बन चुकी है, तो आप में से किसी ने बताना ज़रूर है कि कौन सी बेसिक चीज़ है जो मुझे नज़र आ रही है इस सेकंड स्टेप में और मैंने यहाँ मिस कर दी, ठीक है।
चल नेक्स्ट और सेकंड लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 और 2 आपने करने हैं एक्सरसाइज 8B से, पेज नंबर 117 से, और बाकी क्वेश्चन 3 और 4 पार्ट जो क्वेश्चन 5 का है जो क्लास में क्या है उसको अपनी कॉपीज़ में उतारना है। तो इंशाल्लाह लास्ट जिस तरह हमारा चैलेंजर था उसको एक ही स्टूडेंट ने सॉल्व किया, रिजवान अहमद ने, और कोशिश करें अब आप लोग भी सॉल्व करें। रिजवान अहमद 6th और 5th टाइम कर रहे हैं ये सॉल्व, तो किसी और स्टूडेंट का भी नाम आना चाहिए। बीच में हमाद आबिद भी आया था, तलहा उमर भी आया था, लेकिन अब वो सारे फेड होते जा रहे हैं और सिर्फ रिजवान अहमद है। चलें आज का लेक्चर इधर ही एंड करते हैं और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हमने सॉल्व करना होगा क्वेश्चन नंबर 6। बी प्रिपेयर्ड, ऑनलाइन लेक्चर के लिए सवालात होने वाले हैं और जो सवालात का जवाब नहीं दे पाएगा मे बी पॉसिबल स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और टेस्ट में आपके मार्क्स कट कर दिए जाए। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा।